First of all, I would like to thank UPSC Time for inviting me on their channel. And finally, first of all, I would like to introduce myself. My name is Sachin Verma. I have secured All India Rank 785 in this year's Civil Service Examination 2025. Uh, this was my fifth attempt, and before moving forward to the strategy, uh, सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मैं लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम देयर ओनली। देयर आफ्टर देयर आफ्टर देयर आफ्टर आई मूव टू दिल्ली for higher education. And I got good scores in 12th, so I got admission in Hindu College. I enrolled in BA. My subjects were history and political science. uh, so this was 2017 when I enrolled in graduation, and I graduated in 2020. uh, I was clear from the beginning that I have to go for the civil services. Therefore, I joined the coaching in 2020 beginning, 2019 last. I joined the weekend batch in the Chanakya IS Academy that was in the North Campus. So uh, I did join online coaching for a few months. Then suddenly Corona came, so I have to move back to my hometown. And then I think there was a gap in my preparation for around uh, 1 year. I have to prepare from home, but it was not a proper dedicated study, I think. In 2021, when I returned from my home, I started my preparation dedicatedly. I started from optional. So my optional was anthropology. Uh, that I will tell later why I changed my optional since my graduation was in history and political science. So in 2021 itself, I gave my first attempt, and since my preparation was okay, so I was able to clear the prelims. But I was not very much prepared for the mains exam, so I missed the mains cutoff. In 2020, I could not clear pre somehow. I missed the cutoff by 2 marks. Then came 2023. I cleared pre, I cleared mains, and I appeared for interview, but I missed the final cutoff by 7 marks. Again, I appeared in 2024. I qualified all the stages, but missed the final cutoff by 25 marks. And then came 2025, the much awaited year for myself, for me. Uh, I secured All India rank 785, thankfully. And since I was also giving the state PCS exam, so in that I also secured good rank, and I was allotted block development officer in UP. So this was my overall journey. And now if we talk about the preparation strategy, then I would like to divide this whole journey into three parts, like the, the pre-exams, main exam, and interview. So uh, before starting this separate strategy for all three stages, I would like to clear about the coaching which I have joined. Firstly, I have joined the Chanakya IS Academy. 1 year course was there, but that was, I think, just a basic course. That was since I have already started reading NCRTs in my home, so the coaching was not that much useful for me. So don't follow me when it comes to coaching or anything. So coaching is just to introduce you to the whole examination
टू मे ताकि आप एक हैबिट में आ जाए पढ़ने की, बस इसके लिए होता है, क्योंकि मेन आपको जब आपकी कोचिंग ख़त्म होती है तभी से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। एंड फिर जो टेस्ट सीरीज़ हैं, चलिए वो मैं आपको बाद में ही बताता हूँ जब अलग अलग स्टेजेस की बात करेंगे। सो नाउ कमिंग टू द प्री एग्ज़ाम। So, as you know, all the resources are there. Every topper tell the same thing. What are the sources like Polity, Lakshmikant, and Spectrum, and Monal sir ki economic notes. So these are well known. But what we have seen from the last few years is that the paper of prelims is very tricky nowadays. So you can't go just with your knowledge and clear the pre. Uh, so you have to have certain in-depth analysis of this exam is the whole process of the prelim exam to clear the cutoff. Uh, uh, if you go by the knowledge only, you can score 70, 75, 80. But to clear the cutoff, you have that aptitude to solve the question paper. So for this, I think you have to analyze at least previous 10-year question paper, and you have to uh, think that why one option is correct and why other is incorrect. There are certain patterns in their option formation, like they it can be a certain extreme word, or they use some data which sometimes is wrong, or there are contradictory statements in two contradictory statements are there in the four options. So these patterns you have to identify from the PYQ themes. And other thing you can derive from the PYQ theme is to find out the topics which are most favorite areas of the UPSC. For example, the international organizations, they ask at least one question every year, and then they ask about surrounding neighboring countries or the places in news. So you have to identify those themes. So and you have to prepare your notes accordingly. So just don't blindly follow the material which is available in the market. You collect the material, but prepare it according to the demand of the examination. And one thing I mock test is that key you can follow. Uh, there are two options. Either you can follow the mock test of two UPSC coaching institute, like uh, to have the variety of questions. But I used to follow Vision IS free test series which is available in the market, because I was comfortable with it, and I used to solve around 20 to 25 tests every year. But my prelims preparation was more about my own notes, which I have made online, and revising them again, rather than relying on the mock test. Mock test I used to give just around 10 to 15, and that were not much very means wholeheartedly. सो बस ऐसे लाए मार्केट से और दे दिया किसी तरह, मतलब अपने आप को समझाने के लिए कि मैंने मॉक टेस्ट दी. अदरवाइज आई हैव माई ओन नोट्स, and I used to update my notes with the current affairs by referring to PT 365, uh, and I used to follow different things for different things. Like I used to watch Mrunal updates for the economy, and then I used to watch certain videos of places in news for from Sudarshan Gurjar sir. So you don't have to rely on a particular thing or particular source. You have to uh, search for the multiple things which is beneficial for you. Uh, then another aspect of prelim exam is CSAT. So I think 2023 paper was very much, I think it was exceptional, and it was very difficult. So although I cleared the that paper very easily, but it was all about how you search the easy question in the real-time examination. So if you got struck in one or two difficult question, then your time is gone, and your paper will not be finished. So आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही पेपर मिल रहा है एग्जाम हॉल में,
तो आपको पहले उसमें जब आपको 1 टू 80 क्वेश्चन तक जाना ही पड़ेगा। आपको 1 टू 80 क्वेश्चन तक जाना ही पड़ेगा और आपको आइडेंटिफ़ाई करने हैं ईज़ी क्वेश्चन। अगर आपने ईज़ी क्वेश्चन आइडेंटिफ़ाई कर लिए देन आपकी कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी। एंड और अब आपको सिर्फ़ मैथ और रीज़निंग पे डिपेंड नहीं होना है। मैथ और रीज़निंग पे अगर आप डिपेंड होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी हैविंग ब्लंडर इन द एग्ज़ामिनेशन। आपको आरसी पे मेहनत करनी है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक वहाँ पे आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपने प्रैक्टिस किया है पिछले 2-3 साल में, देन आप वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सही हो सकते हैं एंड दैट विल सेव योर अटेम्प्ट। तो आपको एडवाइस है कि आप कॉम्प्रहेंशन वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मैथ में पीवाईक्यू जितने हैं अभी तक 2020 जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है, आप थीम वाइज पीवाईक्यू को सॉर्ट आउट कर लीजिए। आप खुद नहीं सॉर्ट आउट करिए, आपको मिल जाएंगे कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सब चीज़ों को आप एक थीम वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उससे आपको एक प्रैक्टिस होगी जो कि आपको एग्जाम हॉल में हेल्प करेगी। तो ये रही प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। फिर हम आते हैं मेंस। तो मेंस में प्री में अंतर वैसे तो इंटीग्रेटेड तैयारी ही होनी चाहिए, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं जो आपको मेंस में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग में अ, एक तो ये है कि हम कब से आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। तो आपको फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एटलीस्ट यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस and basic understanding of all the topics in a particular subject. Like if you are going to start uh, writing answer of modern history, at least you have read the notes 1 or 2 times. So this is necessary. And also one thing is that to कि चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में याद रहें, जब आप लिखें तो चीज़ें याद रहें, आपके पास कंसाइज नोट्स होने चाहिए। आपके साथ कंसाइज नोट्स होने चाहिए हर चीज़ के। जो और वो भी अगर हैंड रिटन होंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी रहेगी। जब हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो आपकी एक पिक्चर मेमोरी होती है आपके दिमाग में एंड आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखने में दिक्कत नहीं होती। प्लस आप जब उस नोट्स को बनाते हैं तो वो भी आपका एक आंसर राइटिंग का ही पार्ट होता है। रही तो आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी टॉपिक सिलेबस में आपके मेंशन हैं, यूपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, आप हर टॉपिक पे अपने खुद के नोट्स एटलीस्ट 1 और 2 पेज का हर टॉपिक पे आपके पास नोट्स होना चाहिए। और आप अगर ऑनलाइन बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन बना रहे हैं तो वहाँ पे आप कुछ स्पेस छोड़ दीजिए ताकि आप आगे चीज़ें वहाँ पे अपडेट कर सकें। इसके बाद रही मॉक टेस्ट की बात। तो क्योंकि प्री और मेंस के बीच में आप ये सब चीज़ें आपको पहले कर लेनी है। एक बेसिक आपके नोट्स अगर प्री से पहले बन जाएँगे, तो आप इस पोज़ीशन में रहेंगे कि आपका प्री जब ख़त्म हो जाएगा तो आप कोई किसी भी कोचिंग में एनरोल करके मॉक टेस्ट अच्छे से दे पाएँगे अपने नोट्स को रिवीज़न के लिए। अ, नाउ अगर आपका प्री हो गया और आपके पहले से कुछ नोट्स नहीं बन पाए, आप आपने बस प्री निकल गया है, तो उस सिंस आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट्स के नोट ना बना के कुछ टॉपिक्स के जो आपके नोट्स हैं वो आप मार्केट से ले सकते हैं। कुछ टॉपिक्स पे आप बना के और रिवाइज़ करके और लिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि 7-8 टेस्ट आप दे सकते हैं अपनी स्पीड को टेस्ट करने के लिए। दैट विल बी इनफ। आइडियली तो ये रहेगा कि जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाएँ तो उससे पहले प्री से पहले ही यू शुड बी होली प्रिपेयर्ड फॉर मेंस इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल। You should be having your all handwritten notes on every topic of your syllabus. This is the ideal thing. But अगर नहीं हो पाता है then you have to speed up post pre and you don't have to wait for your prelims result because next year तो आपको देना ही है। अगर आपका हो भी जाता है और फिर आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही है, आप फाइनलिस्ट से बाहर हो रहे हैं, then you have to again appear for the next year because when you come in cycle once then you don't have the time to improve on your uh, mains answer writing. You will be stuck in the cycle. So it is better that you should you should complete your syllabus before pre only. That will be a ideal thing. And don't run after so much material. Don't look for perfection.
You should focus on more on revising the things and writing them and practicing them through mock test. What you can do is, if you are not able to afford the test series, you can use the Chat GPT or Gemini. That I used to do extensively. You can just write your answer and you can upload it on the Chat GPT and they will evaluate it. You can do it, if you are not able to afford the test. Uh, this is the things. And now coming to the optional thing. So since I have already told you that my graduation subject was history and political science. So at that time I selected anthropology as optional. So this was primarily because of two reasons. First of all, I used at that time this was very popular. People were scoring above 300 easily, and I have seen that in their syllabus is very much descriptive. It is very greatly described. So, and the question used to be direct from the syllabus at that time, but now it is not the thing. You have to choose your optional after uh, seeing your interest and seeing the previous recent PYQ, because the trend is changing. Now they are the questions are more analytical and they require in-depth understanding of any subject. So this is the thing. And the second reason was ki it is more both mix of humanities and science. So my 12th was from science background, so I was more comfortable in a subject which is also which have some objective thing also, like in sociology it is purely social science, but in anthro you can see that there is a biology, there is archaeology, where you can get more marks if you are well prepared and if you have good understanding of those topics. So this was the reason. But abhi in current times, anthropology paper is very tricky nowadays, and you have to refer to the past 2 3 year question paper and then decide accordingly. Uh, this is all about optional. For optional, I did coaching in one of the institute in the Karol Bagh, and then it was around 4 month syllabus. 4 month classes are there. Then after that, I wholly relied on making my own notes on every topic and writing test. This was enough. This was enough, and I used to follow topper notes extensively. Uh, you can do. In anthropology also, any optional, you have to focus more on uh, in-depth understanding, like it is different from GS, so you have to keep in mind the relevant scholars, case studies, examples, diagram, flowchart, to show the examiner that you really understand the subject. This is all about means. Now coming to the interview part. So my score in 2023 was 157, in 2024 was 150, and in 2025 it is 190. So there is a around jump of 30 to 35 marks from my earlier attempts. So I think the major difference was I think uh, confidence. So interview is not about knowledge, you all know. You have to work on your confidence, like what you study in newspaper, what you uh, study in notes, or you get from any lectures. You have to study it in depth. You should be able to reply to the counter question asked by the board. सो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि जैसे कि मेंस में पॉइंट्स आपने 5 याद कर लिए किसी भी टॉपिक पे और आपने उनको सुना दिए, नहीं। आपको यहाँ पे पॉइंट्स कम बोल रहे हैं, बट आपको उन पॉइंट्स पे जो काउंटर क्वेश्चन करेंगे उसका आपके पास जवाब होना चाहिए। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और स्टार्ट आपको करना है न्यूज़पेपर, आपको एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स को रेफ़र करना है। One you can refer the Hindu, and the other I used to see the explained portion of the Indian Express. Then what you can do is to make your own notes, handwritten or print or online, where you have to write in a natural language. Like natural, like you don't have to copy and paste the thing. You have to write your notes in the way you are going to speak in the actual interview.
and you have to not you don't have to read everything. You have to rely on your previous knowledge which you gathered in the means, plus you have to have a good understanding of the things which are going on currently. So current affairs are important, plus your DAF. So in DAF, your birth place, district, your state, your home state which we have declared, your hobbies, your graduation subjects, your optional. You have to be very well versed with these topics, and you have to be very confident while answering about your hobbies and all, because then it will be like a very bad impression if you don't able to give answers on your hobbies. फिर वो उनको लगेगा कि आपने बस ऐसे ही लिख दिया है और आपको रियली में इंटरेस्ट नहीं है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्लस इन इंटरव्यू आपको जाना है तो यू हैव टू बी calm, you have to be confident, and if you don't know anything, you have to simply say, sir, I don't know. And if you don't bluff there, other it will create a very negative impact and it will reduce your marks. So this is the thing. So uh, now I think there are some questions which I have to answer for you. I will take your questions. हाँ, जैसे कि जब सिलेक्शन हुआ तो आपको कैसे पता चला था? तो सिलेक्शन जब मेरा हुआ था तो मैं क्योंकि मेरा पीसीएस का इंटरव्यू आने वाला था तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था। तो एकदम से आई थिंक दोपहर का टाइम था। तो एकदम से मुझे, क्योंकि उस टाइम पता चल जाता है जब रिज़ल्ट आने वाला होता है, तो मैंने पीडीएफ खोला और मेरा नाम वहाँ पे था, जो कि पिछली 2 बार से मैं सर्च कर रहा था, ऐसा नाम मुझे मेरा मिल नहीं रहा था, तो इस बार था कि बस किसी तरह मेरा नाम होना चाहिए। तो काफ़ी मतलब एक अच्छी फीलिंग थी। मेरी सक्सेस का क्रेडिट तो मतलब यही है कि एक जब आप इतनी लॉन्ग जर्नी होती है तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है, एंड प्लस आपको सेल्फ बिलीफ भी रखना ज़रूरी है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट rejection, it is not about selection. So you have to be patient and you have to work on yourself and you have to study consistently, like you don't be motivated from some external thing. आपने किसी को देखा, कुछ आप मोटिवेट हुए, आपने 10-20 दिन जो है खूब पढ़ाई कर ली, देन आपका एकदम से डाउन हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ अ टेस्ट मैच, इट इज़ नॉट 2020 और 1 डे। सो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक अ टेस्ट मैच। ठीक है, आपको यहाँ पे डेली आपको कुछ घंटे देने पड़ेंगे, भले ही आप 4-5 घंटे दे रहे हैं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी फोकस्ड। मेंस में मैंने सब कुछ बता दिया है, मैं एसए के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। एसए में एसए में मैं आपको बता रहा हूँ कि एसए में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल मार्किंग तो हो रही है, क्योंकि एक्सट्रीम मार्किंग देखी जा रही है। सम आर स्कोरिंग above 110 and some are scoring 80s. So earlier my score used to be 90s, and this time I got in around 102. So there are many things, but what I have learned is that there is you have to follow your own natural style. अगर आप अपनी नेचुरल स्टाइल फॉलो करें देन यू विल गेट मार्क्स। द पॉइंट इज दैट यू शुड बी एबल टू fulfill the demand of the topic. You don't have to deviate from the topic from any paragraph from start, and try to write in simple yet and using the keywords. That will be enough. And you have to be multidimensional, and you have to be like you can break the topic into 2-3 parts: how, why, and the counterpoints. So you can, any philosophical essay you can break into certain sub themes, then you have to organize your arguments around those themes. So and for this you have to practice at least 6 to 7 essay you have to write before the means. For that you can refer the topper copies, how they are writing, how they are using the quotes, how they are using anecdotes, how they are using stories. I have told you optional strategy.
मेंस आंसर कैसे फ्रेम करें? सो बेसिकली सेम फॉर्मेट इज दैट कि इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, बट डू रिमेंबर दैट डोंट राइट व्हाट यू नो. Do, write always write what is asked in the question. Like suppose food processing industry is asked, but they are asking the backward and forward linkage, and you are writing the benefits, challenges, and suggestions. So this will not going to get you marks. You have to put your heading according to the question that is asked, like backward linkages and forward linkages. Then you have to conclude. Just so demand of the question should be addressed, and that is enough. Don't and don't try to ओवर यूज द फ्लो चार्ट. जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि इसको फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने से हमारा स्पेस बच रहा है, आप सिर्फ वहीं पे यूज़ करिए. अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो स्पेस भी जाएगा और आपका वो आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं शायद वो नहीं हो पाएगा फ्लो चार्ट में. सो यूज फ्लो चार्ट फॉर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड. Point wise answer should be in point wise format, and use flowchart when where you feel that it will be very difficult to express in the point. And then follow the subject specific thing. Like in geography there is a lot of scope of making maps, so you have to make the maps there. And in anthropology there is a lot of scope of making the skull diagrams, the maps of archaeological sites. And in the physical anthropology the body parts diagram you can make there. प्रीलिम्स में कुछ ऐसा होता है ना, जैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी को नहीं आ रहे हैं, जो कहीं से भी उठा के पूछ लिए गए हैं, उनको तो आपको छूना नहीं है. मतलब 10-12 ऐसे क्वेश्चन होंगे. मोस्टली 80 to 85 इज ए गुड अटेम्प्ट. तो 15 क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हैं ऐसे ही, जो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, जहाँ पे कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो सकता है. वॉट यू कैन डू, एंड देन देर आर सर्टेन ईजी क्वेश्चन विच यू विल बी नोइंग. जो इशू आता है मेन, जो 20-25 क्वेश्चन का इशू होता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको उन ऑप्शंस अगर दो ऑप्शन आपके बच रहे हैं तो कैसे वहाँ पे आपको एलिमिनेट करना होगा, कैसे आपको इंटेलिजेंट गेस करना होगा. वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा. पीवाईक्यू देखिए और मॉक लगाइए. मेंस में आपको कुछ छोड़ना नहीं है. पहले तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, एंड बाद में जो बचे उनमें भी लिखना है, कुछ भी लिखना है, बट आपको छोड़ना नहीं है, आपको पेजेस फिल करने हैं. तो वो क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं डिसाइड करेंगे. सिलेक्शन आपको वही 15 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे जो सबको आ रहे हैं. वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है. जो 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना है, और जो भी बेस्ट पॉसिबल नॉलेज के साथ आप उनको लिख सकते हैं, दैट इज़ गुड. आपको उनके बारे में टेंशन नहीं लेनी है. इंटरव्यू में तो आपको सीधे मना कर देना है कि सर आई डोंट नो. यू हैव टू बी ऑनेस्ट देयर. साथ में ही करनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस की तो साथ में ही करनी चाहिए. बट ये कि ना आप कब स्विच कर सकते हैं. जैसे आप अभी आपको अगले साल का देना है अटेम्प्ट, तो आप दिसंबर तक तो साथ में ही करेंगे. आपको ऑप्शनल पढ़ना है, आपको मेंस का ही पढ़ना है, तो उसके साथ में आपको प्री भी नॉलेज बढ़ रही है. बट जनवरी फरवरी आने तक आपको स्विच करना पड़ेगा प्री में. तो स्टार्टिंग में साथ में करना है, देन यू हैव टू शिफ्ट अकॉर्डिंगली वेन एवर देर इज अ टाइम लाइन एग्जाम्स आर कमिंग. Interview board is very cordial. It is very cordial, and they will make you comfortable once you will enter the room, and you will not be feeling fear like you face in the mock interview. So board is cordial, and they will judge according to the answers you give. डैफ में आपको पूरा कोई उसमें आपको जो भी आपने एजुकेशन और जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं वो सारे आपको लिखने हैं. एंड जो हॉबी में आपको वही लिखना है जो आपने एक्चुअली में किया है. एंड या फिर आप अगर नहीं किए हैं और आप करना चाह रहे हैं तो आप उसको परस्यू कर पाएंगे, या आप बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे हैं बट आप उसके आंसर दे पाएंगे या नहीं. सो दैट इज़ द क्राइटेरिया टू राइट डैफ, कि आपको वो चीज़ें लिखनी है जिनके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कंफर्टेबली यू कैन आंसर, एंड कॉन्फिडेंटली यू कैन आंसर. ऐसा ना लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने ऐसे लिख दिया. सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट. बुक लिस्ट तो सब सेम ही पढ़े हैं, सोर्सेज सबके सेम हैं. व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू बी यू कैन मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स. इससे क्या होता है ना कि लोग, जैसे कोई लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट पढ़ रहा है तो उसको रिवीजन करने में 10 दिन लगेंगे, बट इफ यू हैव योर ओन शॉर्ट नोट्स देन यू कैन रिवाइज इट इन 24 hours ओनली. सो दैट इज द डिफरेंस.
So it's all about how many times you do revision. That is up to you. Government websites are important, so you can refer PIB occasionally, not regularly. You can actually, you can, what you can do is you can search for specific topics, and then you can see there will be one or two PIB links will be there related to that topic. So you can search accordingly. Don't follow it religiously, like every day you are searching for PIB and you are reading the notes. That will consume lot of your times. So आप रिवर्स तरीके से जाइए। आप पहले टॉपिक सर्च करिए और फिर आप जो है जाइए। फिर आप उसको मिल जाएगा, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा पीआईबी का। आप उस टॉपिक से चीज़ें देख सकते हैं। जैसे एसडीजी वगैरह है, आप डालेंगे तुरंत पीआईबी का लिंक आ जाएगा। जो भी रिसेंट एसडीजी इंडिया रिपोर्ट होगी, उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है, आप उस पर हो जाएगा। दूसरे के नोट्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ने चाहिए। दूसरे के नोट्स आप रेफर करिए एंड मोड दोज नोट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो कभी नहीं। सिलेबस कैसे? सिलेबस में ये ना कि आपको पहले आपको सिलेबस को अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या है। सारे आपको सिलेबस पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और फिर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉइंट बनाने हैं, नोट्स अपने बनाने हैं। तो ये है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन आपके बेसिक नोट्स बन गए। इसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स में चीज़ें आती रहती हैं, न्यूज़पेपर में चीज़ें आती रहती हैं। आप वहाँ से वो चीज़ें उठाइए जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली टॉपिक मेंशन है। आप कुछ भी नोट्स मत बनाइए, ठीक है? And you can also refer the topper copies. There you can refer important quotes, like in ethics you can extract many examples, many quotes. So the topper notes are helpful, very helpful. NCRT new या old? Like in history you can refer the old NCRT, but in other subjects you can refer the new NCRTs. So in history, like there were three books, R.S. Sharma, Satish Chandra and Bipin Chandra. So you should refer to those books. But in other subjects like in geography, you can refer the new ones. Current affair, current affair you can refer any one source. Like I used to refer Vision IS notes, and I uh, I don't I used to make my own notes from Vision IS magazine. So जैसा भी आपको सही लगे, अगर आपको डायरेक्टली आप पीटी से 365 से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। अगर आपको अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो बनाइए। मैं तो डिजिटल नोट्स बनाता था थीम वाइज, और मैं वही चीज़ें लिखता था जो प्री के पॉइंट से रिलेवेंट है। जैसे कि आप, और ये सब कैसे पता चलेगा कि क्या रिलेवेंट है क्या नहीं, ये आपको पीवाईक्यू देख के ही पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं, ऐसी वो होती हैं जो उसमें लिखी हुई होती हैं, जो वो कभी नहीं पूछेगा। रिपोर्ट्स जो होती हैं जिनके पार्टिकुलर नाम होते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड वो इंपॉर्टेंट हैं। बट कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, WHO ने कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया, वो उसमें लिखा है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्री। यू कैन यूज़ द कंटेंट इन दोज रिपोर्ट्स फॉर द मीन्स, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्री। सो आपको उसमें भी कंटेंट रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आप बार बार उसको रिवीजन कर सकें। स्टार्टिंग में तो मैं ये जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2020 में, तो आई यूज़ टू रेफर मैगजीन्स लाइक योजना, कुरुक्षेत्र, बट ग्रेजुअली मतलब वो सब साथ में मैनेज करना मुश्किल है। तो आप इसके बाद क्या होता है ना कि आप फिर टॉपिक के हिसाब से देखते हैं ना, कि अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छी मैगजीन आ गई तो आप उसको रेफ़र करिए। बट एक बार आपको अवेयरनेस हो गई चीज़ों के बारे में, तब आपको इतना ज़्यादा मैगज़ीन के पीछे नहीं भागना है। यू हैव फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग द थिंग्स rather than reading too much, too many magazines, too many current affair booklets. Avoid avoid becoming the content collector. टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज प्री में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और प्री में इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड के लिए। आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और कितना टाइम ले रहे हैं। वंस यू आर मतलब कंफर्टेबल इन सॉल्विंग योर टेस्ट in time limit, then it is okay. Then comes the game of knowledge and your aptitude of solving question. So prioritize more on PYQ than mocks. Mocks are secondary. Don't ignore the PYQs because the current trend is changing every year. So mocks, they can't predict the trend.
मेंस टेस्ट सीरीज तो जो जिसको अगले साल अटेम्प्ट देना है तो वो तो अभी मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, जो होता है ना पूरा पैकेज जिसमें 34 टेस्ट या 30 टेस्ट होते हैं जो पूरा अगले मेंस तक जाएंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट जिसको अभी इस साल ही देना है, दे कैन टेक द 10 to 12 टेस्ट आफ्टर द प्री। क्वेश्चन की डिमांड इट इज़ हिडन इनसाइड द क्वेश्चन ओनली। when you read the question you can sense what they are asking, and don't just see the keyword of your syllabus and start writing. See what they are asking. If they are asking challenges, then although you have to write solution, but you have to devote more space to the challenges, and try to manage space of your answer sheet well. डोंट मीन्स ऐसा ना हो कि पहले आप बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, फिर आप आपका कंटेंट ज़्यादा आपको आ गया, फिर आप लास्ट में आप छोटा छोटा लिखने लगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा बैलेंस करके लिखना है। स्टार्टिंग से आप प्लान कर लीजिए कि हाँ 1.5 पन्ने में मुझे चैलेंजेस लिखने हैं, फिर आधे पन्ने में मुझे सजेशन लिखना है। सो यू हैव टू डू इट एंड दिस विल कम थ्रू प्रैक्टिस। मीडियम जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप यूज़ करें, क्योंकि अभी ऐसे आपका जैसे आप हिंदी मीडियम से हैं तो ऐसे सडनली आपको चेंज करेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बिकॉज़ देन यू हैव टू स्टडी लॉट। तो जो भी आपका मीडियम है आप उसी में मतलब तैयारी करें। ऑल्दो थोड़ा ऐसा परसेप्शन है कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम हो रहा है, बट देन फिर आप अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको नहीं छोड़ सकते ना। इंग्लिश मीडियम आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अगर उसमें आंसर सही से नहीं लिख पा रहे हैं, देन इट विल बी then also the chances of selection are very less. So you have to be write paper in the medium in which you are comfortable and which you are writing since the childhood. मैप्स मैप्स याद नहीं करना है उसको, मैप्स को आपको ऑब्जर्व करना है। मतलब क्या है कि जैसे कि जैसे आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी करनी है। स्ट्रक्चर्ड स्टडी मतलब कि आपको पहले तो पूरे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आप डिवाइड कर लिए। ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। देन आपको कॉन्टिनेंट वाइज इसको टाइम देना है कि आपको पहले साउथ अमेरिका के बारे में हर चीज़ को देखना है कि उसकी सारी कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, और वहाँ पे मेजर रिवर्स कौन सी हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, ठीक है? ऐसे करके आपको हर कॉन्टिनेंट में जाना है। ऐसे ऐसे आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है, रैंडम मत पढ़िए कि कुछ भी आप देख रहे हो उसमें, नो। आप जो और चाहिए तो आप खुद के मैप्स जो है ना मार्केट से आप खरीद के लाके उस पे प्लॉट करिए, मतलब ताकि आज आप खुद प्लॉट करेंगे तो आपको ज़्यादा ही रहेगा। एंड उसी और आप जब मैप्स को तैयारी कर रहे हैं ना तो उसी के साथ आप प्लेसेस इन न्यूज़ की भी तैयारी उसी से इंटीग्रेट करके करिए। जैसे आप वेस्ट एशिया का मैप देखिए तो देन अभी ईरान और उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप उसको माइंड में रख के फिर आप चीज़ों को मैप करिए कि अभी क्या कहाँ पे क्या, उससे आप रिलेट करिए करंट अफेयर्स से। आपकी जो मैपिंग है उसको आप रिलेट करिए। तो स्टैटिक मैपिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। यू हैव टू prepare certain amount of knowledge of world mapping. Then you have to refer to the places which are in the currently which are in the news. So static and current, two aspects of the mapping. प्लान भी मतलब रखना चाहिए, मेरे हिसाब से तो रखना चाहिए, बट स्टार्टिंग में नहीं। एक बार आप जब आप तैयारी कर रहे हैं, आप डेडिकेटली तैयारी करिए। 1-2 अटेम्प्ट के बाद अगर आपका नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि चीज़ें अभी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सी लग रही हैं, तब आप जो है कुछ अपना स्टेट पीसीएस वगैरह कर सकते हैं, या आरबीआई ग्रेड बी जो भी है अदर एग्ज़ाम है आप उनकी तरफ जा सकते हैं। बट इनिशियली यू शुड गिव एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट्स डेडिकेटली। तब आप अपना माइंड को डाइवर्ट मत करिए, बिकॉज कंपटीशन इज देयर एंड यू हैव टू गिव हायर 100% टू दिस एग्ज़ाम। So I think you can have B plan in the mind, but execute it later when you think that getting into the list is now difficult and you are not able to sustain yourself. पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? पढ़ा हुआ you have to अलग अलग चीज़ें हैं। इन मीन्स यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू रिवाइज इट रेगुलरली। इन प्री you have to give marks and give mocks, and you can do is you should identify those topics which you easily forget. You can write at a particular place. For example, in polity, there are certain things which you will never forget once you read it
2 to 3 times, but there are certain things which you will forget after certain time. So write those topics in a particular sheet of paper, subject wise, and which you forget frequently. So revise those topics frequently. So this is the strategy I used to follow. ऐसा मैं करंट जो के उसमें मैं ऐसे ही करता था कि जो क्वेश्चन मेरे बार-बार गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैं लिख लेता था और जब नेक्स्ट टेस्ट देता था तो उनको पहले एक बार देख लेता था, रिवाइज़ कर लेता था। इससे आपका समय भी बचता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्ट्रैक्शन से इसलिए ऐसे बचें कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सोशल मीडिया वगैरह पे आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। और आप फ़ोन भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका थोड़ा प्रोडक्टिव यूज़ करें। आजकल तो चैट जीपीटी वगैरह है और आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से ईज़िली चीज़ों को समझ सकते हैं। सो यूटिलाइज़ द फ़ोन एंड टेक्नोलॉजी जुडिशली फॉर योर ओन बेनिफिट। अवॉइड सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स। मेरी टिप्स यही है कि ओवरऑल मेरी टिप्स यही है कि जो ये प्रिपरेशन है पूरी, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो जब आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दें, देन you should be very much prepared for the means. Otherwise you are going to, once you are मान लीजिए आपका प्री क्लियर हो गया और आप एक बार साइकिल में फंस गए, then it will be very difficult for you to improve your mains marks. So give your first attempt only when you are mains ready. So this is the major tip, major thing, because ये मेरे लिए भी बहुत एक बड़ी लर्निंग रही है अपनी जर्नी में, इसीलिए दिस थिंग आई वांटेड टू शेयर। तो अभी मैं आपके क्वेश्चंस देता हूँ। इस टाइम कोई पूछ रहा है कि इस टाइम कैसे प्री को अप्रोच करें। तो इस टाइम पे आपका मेन फोकस जो है ना, रिवीजन पे होना चाहिए आपका मेन फोकस। और आपको टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट के साथ आपकी जो गलती हो रही है, आपने पॉलिटी का टेस्ट दिया, आपको आइडेंटिफाई हुई कि आप कौन से टॉपिक्स में गलतियाँ कर रहे हैं। यू गो बैक टू योर ओन नोट्स, सी दोज टॉपिक्स अगेन, रिवाइज देम अगेन, एंड देन मूव फॉरवर्ड। डोंट इग्नोर योर मिस्टेक। आप ऐसे मॉक टेस्ट को ऐसे मत दीजिए कि आप अपने मार्क्स टेस्ट कर रहे हैं। नो, मॉक टेस्ट आर जस्ट फॉर लर्निंग। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम। मार्क्स आपके कुछ भी आ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते एक्चुअल एग्जाम में। मेरे भी मार्क्स ऐसे ही आते थे, 60-70 मार्क्स में मेरे ऐसे ही आ रहे हैं, बट मेरे 100 के ऊपर आ रहे हैं एक्चुअल एग्जाम में। तो मार्क्स वगैरह पे इतना उसको सीरियसली मत लीजिए। कोई पूछ रहा है कि जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले पीवाईक्यू हैं आपने प्रैक्टिस किए हैं, प्रैक्टिस फ्रॉम मॉक्स और कोचिंग। हाँ, पीवाईक्यू आपने कर लिया ना, डैट विल बी इनफ। आप कर सकते हैं, कोचिंग से भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, बट आप उन्हीं को और अच्छे से एनालाइज करिए जो पीवाईक्यू पूछे गए यूपीएससी वाले, उन्हीं को आप अच्छे से एनालाइज करिए। तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आप उसको आइडेंटिफाई करिए कि आखिर ये जो आपने उसमें गलत किया ना, आप आइडेंटिफाई करिए कि मैंने क्या सोच के गलत किया, क्या सोच के टिक लगाया था, एंड क्या होना चाहिए था एक्चुअली में। सो आप अपनी थिंकिंग को भी क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? इससे आपका और ज़्यादा उसमें पकड़ बनेगी अच्छी। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ 2027 एंड यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जस्ट अ वीक एगो। यस, टाइम इज सफिशिएंट प्रोवाइडेड यू हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम। हाँ, ये मेन इशू ये है ना कि हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम। सो अभी टाइम है 2027 में, यू कैन अच्छे से यू कैन प्रिपेयर। तो आप प्लानिंग, जैसे आप एनसीईआरटी बोल रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है। पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, और फिर आप सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको पढ़िए, फिर आप मेंस पर शिफ्ट होइए। ठीक है, अभी आप दिसंबर तक आपको मेंस का कर लेना चाहिए। इसके बाद आप फिर से प्री का स्टार्ट करेंगे। तो आपको अभी तो इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्री व मेन की। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हिंदी का पेपर जो होता है, क्योंकि आप शायद आप इंग्लिश मीडियम से होंगे तो आपको हिंदी लैंग्वेज पेपर में काफ़ी दिक्कत हो रही है।
बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उसका क्राइटेरिया ना 25 परसेंट होने चाहिए मार्क्स, वो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया उसका स्ट्रिक्ट नहीं है, तो यू कैन क्वालिफाइड दैट पेपर इजीली। मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि कैसे लोग फेल हुए हैं या नहीं हो रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ उसका डेटा नहीं है। बट जो मेरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ, मैंने 10th तक की हिंदी पढ़ी है। बट एक बार आप पिछले 4-5 साल के पीवाईक्यू अगर आप देख लेंगे, आप उसका सोल्यूशन वगैरह कहीं से देख लेंगे, तो आप क्या वो मिस्टेक्स कम हो जाएंगी होना। और जैसे कि होता है ना कि आपकी एक्सरसाइज भी गलत हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज सही हो गई, बट उसमें क्या ना, जो राइटिंग वाला पार्ट है, एस्से वगैरह है, उसका जो वेटेज वो बहुत है, तो आप उससे ही पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस अगर आपको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस लग रहा है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हिस्ट्री के लिए जो है, मतलब पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और यू हैव यू शुड बी एबल टू लिंक द इवेंट्स टुगेदर, कि देर आर द इवेंट्स आर लिंक टुगेदर। the for example, every preceding event is a cause for the next event, so the events are linked. Suppose they ask any question which you feel that is out of context, you should then, if it is very random, then it will be very random for everyone. Don't think that you are disadvantaged. And suppose it is something about which you have read very less, then try to use your subsidiary knowledge and the knowledge which is in your subconscious mind. So try to interlink the topics. अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है एवरीवेयर इट इज चेंजिंग, सो हाउ वन शुड नो दैट दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट और अदर टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। नो नो, डोंट ट्राई टू think like that. Every topic is important, all the subjects are important. Give equal preference to everything. If you are going to ignore or leave any topic, then you don't आपको पता नहीं चलेगा कि आपको नेक्स्ट प्री में उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो अगर आपको अपने चांस मैक्सिमाइज करने हैं प्रिपरेशन में, तो आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमी हो। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, फिर भी आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। और आपको ये मतलब अवॉइड दोज यूट्यूब वीडियो जिसमें आपको बताते हैं कि दिस सी ये सब कुछ पैटर्न बताते हैं कि ये इससे ये इम्पोर्टेंट है, इस बार यूपीएससी ये पूछेगा, सीएपीएफ ये पूछा गया था तो सीएससी में भी ये पूछेगा। नहीं नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये इन फालतू चीज़ों से अलग होके आप होलिस्टिकली पढ़ाई कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको कंप्रेहेंसिवली तरीके से तैयार कीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सब्जेक्ट में ही कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो नहीं इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लक्ष्मीकांत में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो आर्टिकल 371 ए बी सी डी टाइप की चीज़ें हैं, वो नहीं पूछता है। उसमें जो एक लाइबिलिटी स्टॉर्ट्स या 294 से 300 जो आर्टिकल है वो सब नहीं पूछता है। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक, देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच यू कैन इग्नोर एंड दैट यू विल बी अंडरस्टैंड while referring to PYQs. But don't think that any subject is less important. No, every subject is important. एंड कुछ भी पैटर्न रखें, अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इफ़ यू आर एबल टू हैव इन डेप्थ, यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, यू कैन आंसर इट वेरी वेल। और वो फिर पैटर्न चेंज सबके लिए होगा ना, आपके लिए थोड़ी ना होगा। जैसे 2023 में जब चेंज हुआ था तो कट ऑफ ही 75 चली गई थी, सो वो सबके लिए एक शॉकर था। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। फर्स्ट ईयर कॉलेज में हो आप तो यू कैन ज्वाइन एनी कोचिंग, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। नहीं ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप यूट्यूब पे भी कोई स्ट्रेटजी देख लीजिए और फिर बेसिक मटेरियल से स्टार्ट कीजिए। ट्राई टू गैदर नॉलेज फर्स्ट, दैट फ्रॉम एनसीईआरटीज, from standard books that are there, and try to finish those static portions like all your optional subject. You can start from there.
पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए आप एक तो ये ना कि एक विज़न आईएएस का एक कंपाइलेशन आता है जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन होते हैं। आप वो देख सकते हैं। मैंने वो देखा था और वो काफ़ी हेल्पफुल था क्योंकि उसमें जो है ना आपको काफ़ी एडिशनल नॉलेज भी मिल जाएगी क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया दिया हुआ है और उसका सारा उसमें एक रीज़निंग दी हुई ना कि व्हाई दैट ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट एंड व्हाई दिस इज़ करेक्ट। तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। नहीं, शंकर बुक नेसेसरी नहीं है। मैंने एक बार पढ़ी थी, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, अब पीवाईक्यू के हिसाब से ही मैंने अपने नोट्स बना लिए। लाइक उसमें आप कुछ चीज़ें डिवाइड कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज पे सबमिट्स वगैरह और उसके लॉज़, पॉल्यूशन के कुछ लॉज़, पॉल्यूशन से रिलेटेड सबमिट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं ना। और एक तो तुम्हारा जो कंसेप्ट वाला पार्ट है, आप लोग तो जानते ही ना, वो बायोलॉजी की एनसीईआरटी से हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ आप तभी देंगे ना जब आपका सिलेबस हो गया। हाँ, आप और प्री में प्री की टेस्ट सीरीज़ तो आपको जैसे मई में होता है ना, तो आपको फ़ेब से स्टार्ट कर देना चाहिए धीरे-धीरे। और मेंस का टेस्ट सीरीज़ अगर आप वही उसमें भी वही मैंने बता चुका हूँ आपको कि अगर प्री के बाद आप स्टार्ट कर रहे हैं मेंस, तो आपको उस टाइम पे ही देना है, 7-8 टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तैयारी, तो आप प्री से पहले भी कुछ टेस्ट दे सकते हैं मेंस के। The UPSC syllabus is limited to NCERT and standard books, then why does it take so much time for people to crack it? First of all, it takes so much time because seats are limited and the competition is very high. So main thing is this only. Secondly, then comes why relative competition is there, na? Why he got selected and why you don't. So this is the main issue. And तो उसका reason ये ना कि एनसीईआरटी है एंड स्टैंडर्ड बुक है, बट उसका भी एक पढ़ने का तरीका है। आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं अपनी एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग वो डिटरमाइन करता है सिलेक्शन। तो अब एनसीईआरटी में भी ना कि आपको सब उसमें आपको सोचना पड़ेगा ना कि कौन सी एनसीईआरटी मुझे किस सब्जेक्ट की रेफ़र करनी है, किस तरीके से पढ़नी है और स्टैंडर्ड बुक भी कितना है, उसमें सब कुछ सब सब सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक तो अच्छी भी नहीं है ना। जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, तो वो ठीक है, बट अदर सब्जेक्ट की आप देखें, इकोनॉमी की आपकी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। तो उसमें आपको कैसे ना उसमें आपको कैसे खुद के नोट्स, खुद की थीम्स आइडेंटिफ़ाई करके करनी है। तो उसमें के लिए आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल आपने फ़ॉलो कर लिया। जैसे मेरा जो 1-2 सोर्स था इकोनॉमी के लिए मुराल सर का था। तो मैं वहाँ से उसको मैंने उनके नोट्स को देखा और उसमें से भी मैंने नोट्स बना लिए, अपने शॉर्ट नोट्स कि उसमें भी कुछ चीज़ें मुझे लगी ऐसा कि जो नहीं रिलेवेंट है। तो वो मैंने पीवाईक्यू से देखा कि ये तो नहीं पूछेगा मतलब। तो कहीं न कहीं तो आपको खुद पे भी एक मतलब खुद का एक दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। अब वो नहीं है कि आपको कोई आके और कोचिंग वगैरह में आपको बता दिया देन ऐसा नहीं है। आपको खुद को भी एक्टिव, एजाइल एंड यू हैव टू बी एनालाइज़ थिंग्स बाय योरसेल्फ, तभी जाके आपका वो होगा। एंड वही आजकल एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में। सो रिलेट फॉर टू आपको अगर आगे जाना है दूसरों से इन दिस हाई रिलेटिव कॉम्पिटिशन सिनेरियो, देन यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड एजाइल। ऑप्शनल बता चुका हूँ मैं आपको कि मेरा एंथ्रो था एंड मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी स्टार्टिंग में, और कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मैं एक बार उसकी बेसिक रीडिंग मार के गया था। तो थोड़ा इजी रहा था कोचिंग करना क्योंकि कोचिंग में मतलब उस तरीके से जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था या जितना एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से नहीं हुआ। तो आई थिंक खुद सेल्फ स्टडी और खुद टॉपर्स के नोट्स को रेफ़र करते करते ही मतलब मैंने उसको सीखा धीरे धीरे। कभी वीडियो, फिर कभी यूट्यूब पे मैंने कुछ स्पेसिफिक वीडियोस देख लिए टॉपिक्स पे सर्च करके। तो ये सब। तो आपको क्या करना है कि आप पहली बात आपको जो मैं अभी कुछ सारे क्वेश्चंस आई थिंक सब हो गए हैं जो मैं फाइनली आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इन दिस प्रिपरेशन यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि अब वो कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कि आप इट इज़ नॉट अबाउट स्कूल के पेपर कि आप किसी कोचिंग में गए उन्होंने आपको कुछ बताया एंड यू आर फॉलोइंग इट होल हार्टेडली विदाउट अप्लाइंग योर माइंड। सो दैट विल बी वेरी डिजास्टर्स फॉर योर प्रिपरेशन। आपको सब कुछ देखना है, आपको सारे मटेरियल देखने हैं, आप कुछ भी लाइए बट आप अपना दिमाग लगाइए कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, बेस्ड ऑन योर analysis of PYQ, based on your analysis of the toppers copies, and based on your UPSC syllabus. So these things are there. So be active,
Give your 100% to this exam if you want to clear it. Don't give half-hearted attempt. Write your attempt when you are fully prepared for the meets. So this is what I can say. And I think someone is asking a question like, he is working. I can prepare 10 to 4 jobs. Achha, you are in job. So yes, you can prepare, but it's not about you are in job or not. It's about how much time you are putting in your studies. So if you are 3 by 4, then you can at least give 4 to 5 hours of your preparation. That will be good, and rest of the strategy will be same for you also. NCRT has to cover all the subjects from season. No, no, don't. If you have time and if you are if you are going to give attempts in 2028 or 2028, then you can refer, but ultimately you some NCRTs will be irrelevant for you. Like in geography, 11 12 NCRT is enough. In polity, I think Indian constitution at work, political theory, these two NCRTs are enough. uh, you can refer as history NCRTs, because what sometimes they ask question from the maps, like this location is related to what, Buddhism or Jainism. That you will get from some NCRT like 6th, 7th, 8th. You can refer history NCRT from 6, but rest of the NCRT be very selective to save your time and focus more on um, have some standard material like coaching structured notes. I also use AI like ChatGPT, where to have the content on the topic in which you are lacking. So this is all what I wanted to say, and I think I am very thankful to UPSC Time India for inviting me here, and it was a very fruitful conversation. Uh, I hope all of your doubts would have been cleared. So thank you, and I am ending this session. All the best for your future journey. Thank you.